अपना आज नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द कार्बन आयंस। कार्बन आयंस दैट इज कार्बन प्लस एनायन मिलके की बनाते ने कार्बन आयन। एनायन रिप्रेजेंटिंग द नेगेटिव चार्ज। Here कार्बन bearing a negative charge, कार्बन प्लस नेगेटिव चार्ज मिलके की बनाते हैं that is a कार्बन आयन। Example CH3 negative. Here it is representing the methyl carbanion. Methyl carbanion. Okay. ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਲਿੰਕਅਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਅਪ ਹੋਏਗਾ, ठीक है। और ये की बनाता ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ दैट इज अ मिथाइल कार्बेनाइन, ठीक है। नेक्स्ट इस दे विच जो आ जाता है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बेनाइन। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बेनाइन, कार्बेनाइन ਦੀ स्ट्रक्चर आ जाती है। कार्बेनाइन ਦੀ स्ट्रक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ CH3 नेगेटिव है, ठीक है। कार्बन है एटॉमिक नंबर 6 ਹੁੰਦਾ। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 and 2p2। if I am considering only outermost configuration that is 2s2 or 2p2। 2s ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਔਰ p ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ this one is a ground state configuration। here it is a ground state configuration। now I am taking excited state configuration। this one electron will shift it to this one, to the higher orbital, ठीक है, to this one like, ठीक है। now कार्बन C नेगेटिव ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਐਨਾयन ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਗੇਨ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਟੂ ਦਿਸ ਸ਼ੈਲ। ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਅਨਪੇਅਰਡ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ दैट इज sp3। ਹੁਣ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 4 ऑर्बिटल्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है जी। 4 ऑर्बिटल्स ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ऑर्बिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ 3 ਕੀ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵਿਦ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ 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 ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਦੀ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਔਰ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਜੋ 3 ਬੌਂਡ ਆ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਬੌਂਡ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ दैट इज विद द हाइड्रोजन। समझ आया। ਹੁਣ ਬੱਚੇ क्वेश्चन आ ਜਾਂਦਾ दैट इज अ क्लासिफिकेशन और सिंपली की कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बेनाइन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बेनाइन ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 टाइप्स आ ਜਾਂਦੇ दैट इज अ प्राइमरी सेकेंडरी और एक क्या ਹੁੰਦਾ है टर्शरी। प्राइमरी कार्बेनाइन कौन सा ਹੁੰਦਾ कि जिस कार्बन ਦੇ ਉੱਪਰ नेगेटिव चार्ज ਆ ਉਹ अगर ਅੱਗੇ 3 हाइड्रोजन्स ਦੇ ਨਾਲ टू हाइड्रोजन्स और एक की आ जाता है एल्काइल ग्रुप और सिंपली वी कैन से कि एक किस दे नाल लिंक अप है विद द हाइड्रोजन। ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਅਗਰ ਉਹ 2 ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਔਰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਅਗਰ ਅੱਗੇ 3 ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਰਸ਼ਰੀ। here is the primary secondary and the tertiary। प्राइमरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ 2 ਐਲਕਾਈਲ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਟਰਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ 3 ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ here is a secondary 2 कार्बन एल्काइल ग्रुप्स ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ और here it is a tertiary 3 एल्काइल ग्रुप्स है जो उस ਦੇ ਨਾਲ अटैच है, ठीक है जी। here is a primary secondary और a tertiary, ठीक है। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ दैट इज a stability। ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੈਨ ਟਰਸ਼ਰੀ। रीजन क्या है कि प्राइमरी दे विच एक ही अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होंगे दैट इज अ
प्लस आई इफेक्ट ਹੁੰਦਾ ਹੈ। प्लस आई इफेक्ट दैट इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, लेकिन जो उसके नाल कोई एल्काइल ग्रुप लग गया जो इलैक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, वो इंटेंसीफाई कर रहा है इलैक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल कार्बन। उसका जो चार्ज है, जो निगेटिव चार्ज है, वो की हो जाता है, इंटेंसीफाई हो जाऊगा। समझ आया ना? क्योंकि हुण की कर दिंदा इलैक्ट्रॉन डेंसिटी है वो की करी जाता है, इलैक्ट्रॉन डेंसिटी की करेगा बच्चे, इनक्रीज करूगा। इनक्रीज किस दे उपर करूगा? ठीक है जी, ऑन द नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन, ऑन द नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन, जिस दे कारण इसकी जो स्टेबिलिटी है वो की हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, प्राइमरी दे विच एक ही अल्काइल ग्रुप है जो उसनों इलैक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे, सैकेंडरी दे विच दो अल्काइल ग्रुप्स और टर्शरी दे विच की आ जाते हैं, तीन अल्काइल ग्रुप्स आ जाते हैं जो कंटीन्यूअसली उसनों इलैक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर रहे हैं। ठीक है जी, हेयर इज अ क्लासिफिकेशन एंड द स्टेबिलिटी। नैक्सट बच्चे आ जाता तुहाडे कोले कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एलाइल कार्बोकटाइन, सॉरी एलाइल कार्बेनाइन और फिनाइल कार्बेनाइन। एलाइल कार्बेनाइन और सेकेंड वन इज द फिनाइल कार्बेनाइन। इन केस ऑफ एलाइल, व्हाट डू यू मीन बाय द एलाइल कार्बेनाइन? एलाइल कार्बेनाइन क्या है? ठीक है जी, हियर इज अ डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड के नाल वाली कार्बन है, अगर उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन ते प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड दे कॉन्जुगेशन हुंदी है। ठीक है जी, कॉन्जुगेशन की हुंदा है निगेटिव, कॉन्जुगेशन हुंदा है कि डबल बॉन्ड ते सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना, कि जो निगेटिवली चार्ज कार्बन है कॉन्जुगेशन है विद दिस मल्टीपल बॉन्ड, देन दैट वन इज कॉल्ड एज अ एलाइल। फिनाइल कार्बेनाइन कौन सा है? कि जो बेंजीन है, ठीक है, इस दे नाल की है CH2, इस दे ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। हेयर इज अ फिनाइल कार्बेनाइन और सिंपल दिस वन इज आल्सो कॉल्ड एज अ बेंजाइल कार्बेनाइन। ठीक है जी, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਦੈਨ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੇਅਰ एलाइल कार्बेनाइन CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। ਹੁਣ ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰਸ ਇੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋਈ CH2 इसके ऊपर की है नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इतों ऊपर की है इस कार्बन ने इलैक्ट्रॉन पेयर इतने डोनेट कर दे, जो इसका नेगेटिव चार्ज हो की हो जाता है डिसअपीयर हो जाएगा और इधरों डबल बॉन्ड है इलैक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो जाते हैं। इतने की हो रही है रेजोनेंस। जो रेजोनेंस हुई थोड़े को एक ही स्ट्रक्चर बनता है, बट इन केस ऑफ बेंजाइल कार्बेनाइन, इन केस ऑफ बेंजाइल कार्बेनाइन CH2 हियर इज अ लोन पेयर, इलैक्ट्रॉन पेयर बेंजीन है इस तो इलैक्ट्रॉन पेयर खिंचता अपनी तरफ, इट विल फॉर्म हियर इज अ नेगेटिव चार्ज एंड अगेन हियर डबल बॉन्ड, अगेन इत्थे लोन पेयर शिफ्ट होंदा है, अगेन इधर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है जी, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, ठीक है जी CH2 डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा, अगेन डबल बॉन्ड हियर। कॉन्टीन्यूसली इधर तुहाडे कोले की हुंदे ने, तुहाडे कोले शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है जी, मूवमेंट किसदी हो रही है? इलैक्ट्रॉन पेयर दी और डबल बॉन्ड दी। ते इत्थे तुसीं की देखोगे तुहाडे कोले 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनदे हैं। ठीक है जी, एज यू नो मोर द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मोर विल बी इट्स स्टेबिलिटी, कि जिन्ने ज़्यादा तुहाडे कोले किसी भी कंपाउंड दे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन्नी ही ज़्यादा उसकी की हुंदी है स्टेबिलिटी हुंदी है। और सिंपली आप इत्थे की कह सकते हैं, देन दिस वन इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दिस वन इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है जी, सेम वाइज अगर आप देखा जाए दैट इज अ डाईफिनाइल मिथाइल कार्बेनाइन आ जाता बच्चे, डाईफिनाइल मिथाइल कार्बेनाइन। ठीक है, उस दे विच आपां की कहांगे उस तो भी ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों? एक आ जाता डाईफिनाइल, फिर आ जाता ट्राईफिनाइल। ठीक है जी, जिमें जिमें फिनाइल ग्रुप्स इंक्रीज हो जाएंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इंक्रीज हो जाएंगे, उन्नी ही ज्यादा उसकी की होंगे है स्टेबिलिटी इनक्रीज करी जाती है।
ठीक है। दिस वन इज ऑल अबाउट द कार्बेनाइंस। नेक्स्ट टॉपिक आ जाना बच्चे, दैट इज अ फ्री रेडिकल विच इज ऑलमोस्ट सेम एज पर कार्बोकेटाइंस। ठीक है जी।